I'm going to pronounce 6 blessings that the rain of blessing through the Holy Spirit comes to us. जल्दी से मैं 6 आशीष बताऊंगा जो कि पवित्र आत्मा की बारिश हम पर लेकर आती है। Ezekiel 34:26. यहेजकेल 34:26। The Lord says, I will send down showers of blessing. प्रभु कहते हैं कि मैं आशीषों की वर्षा भेजूंगा। The first one is the rain of righteousness. इसमें पहला है धार्मिकता की बारिश। Isaiah 45:8. यशायाह 45:8। Rain down you heavens from above. Let the skies pour down righteousness. हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। Isaiah 32:15-16. यशायाह 32:15 और 16। The Spirit of God is going to be poured upon us from upon high. परमेश्वर का आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला जाएगा। Then righteousness will come upon us. और तब हमारे ऊपर धार्मिकता आएगी। And the Bible says in Hosea 10 and verse 12. होशे 10:12 में बाइबल कहती है, Sow for yourself righteousness. अपने लिए धर्म का बीज बो। It is time to seek the Lord ये समय है कि हम प्रभु को खोजें till He comes and rains righteousness on you. कि वो आकर धार्मिकता से आपके ऊपर में राज्य करे। My friend, this year seek for God's righteousness in your life and in your family. मेरे प्यारे दोस्तों, इस साल अपने जीवन में और अपने परिवार में परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते चले जाएं। And then God's reign of righteousness will come upon you through the Holy Spirit. और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का धार्मिकता का राज्य जो है वो आपके ऊपर आएगा। Matthew 5:6, Jesus said, मत्ती 5:6 में यीशु ने कहा, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, for they shall be filled. क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। And you should know where there is no righteousness, there is no rain of blessing. और आपको ये जानना चाहिए जहाँ पर धार्मिकता नहीं है वहाँ पर आशीषों की बारिश नहीं है। 1 Kings 8:35 and 36 says so. पहला राजा अध्याय 8:35 और 36 ये कहता है, Even today. यहाँ तक कि आज भी What is righteousness? धार्मिकता क्या है? Romans 4:3, रोमियो 4:3, Romans 3:22. रोमियो 3:22, Both the verses say, दोनों वचन कहते हैं believing God for everything is righteousness. हर एक बात के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना ही धार्मिकता है। Yes, not complaining and saying, why have you done this, Lord? ये नहीं कहना है कि प्रभु आपने ये क्यों किया। When problems come, जब समस्याएं when आएगी, hunger comes, जब भूख आएगी, when accusation comes, जब दोष लगाया when जाएगा, betrayal comes, जब धोखा दिया when जाएगा, sickness comes, जब बीमारी we आएगी, will still say, हम फिर भी ये कहेंगे, my Jesus will make me live in this world. मेरे यीशु मुझे इस संसार में जीने देंगे। He has a plan for me. उसके पास मेरे लिए He योजना has है। purchased me with his blood. उसने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है। He will fulfill all his will and turn my sorrow into joy. वो अपनी इच्छा पूरी करेंगे और मेरे दुख को आनंद में बदल देंगे। Believing God for everything, believing Jesus for everything brings you righteousness. हर एक बात के लिए यीशु पर विश्वास करने से ही आपको धार्मिकता मिलती है। And the Holy Spirit brings that righteousness in you. और पवित्र आत्मा वो धार्मिकता आप में लेकर आता है। There was a lady called Florence. एक महिला थी जिनका नाम है फ्लोरेंस। She was a lame lady. वो लंगड़ी व्यक्ति थी। She was walking with a stick and crutches. वो तो लकड़ी और बैसाखी लेकर चलती थी। One leg was dead. एक पैर तो मानो मर चुका था। She would pull that leg and walk. वो अपने पैर को ऐसे खींचते हुए चलती। One day the Lord told her, एक दिन प्रभु ने उससे कहा, My daughter, मेरी बेटी, go to the gospel house. उस गॉस्पल हाउस में जाना। Something like the prayer tower. वो कुछ प्रेयर टावर के जैसे ही था। There I will heal you. वहाँ पर मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। She said, उसने कहा, Why should I go to the gospel house to get healed? चंगाई पाने के लिए मैं गॉस्पल हाउस में क्यों जाऊँ? इस तरह से पूछा। First of all, I am lame, my leg is dead. सबसे पहले मैं तो लंगड़ी हूँ, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। Will I ever get healing? क्या मैं कभी कोई चंगाई पाऊंगी? But you are asking me to go there, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ, dragging my leg in the street. सड़कों पर अपने पैर को इस तरह से खींचते हुए जाऊँ। If you want to heal me here. अगर आपको मुझे चंगाई देनी है तो यहीं पर दीजिए। But then the Holy Spirit rose up within her लेकिन फिर पवित्र आत्मा उसके अंदर उभर कर आया and said, और कहा, Better learn to trust me and obey me. मुझ पर भरोसा करके मेरी आज्ञा मानना सीख लो। I want to rain my blessing upon you. मैं अपनी आशीषों की वर्षा तुम पर करना चाहता हूँ। Believe me. मुझ पर विश्वास करो। Believe me. मुझ पर विश्वास करो। Trust me. मुझ पर भरोसा रखो। And she began to cry and repent and
was sanctified through the Holy Spirit. और वो रोक कर पश्चाताप करने लगी और पवित्र आत्मा के द्वारा वो शुद्ध हो गई। Many times we try to dictate to God. कई बार परमेश्वर से हम अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। We say, if you are God, give me this हम blessing. कहते हैं प्रभु अगर आप परमेश्वर है तो ये आशीष When दीजिए। problems come, जब समस्याएं आती we हैं say, where are you? हम कहते हैं आप कहाँ Where पर is हैं? your prophecy? आपकी भविष्यवाणी कहाँ है? Where is your calling? आपकी बुलाहट कहाँ है? No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों, It's time to repent ये समय है कि पश्चाताप करें and bow down before और Jesus यीशु के सामने झुक जाएं and tremble before Him. और उसके सामने कांपें। One who has given His life for us उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है rose up from the grave, और वो कब्र में से जी उठे, is alive, वो जीवित है and has a plan for your और future. आपके भविष्य के लिए उसके पास योजना है। Whether it's good times or bad times, Jesus has a wonderful plan for you. चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, यीशु के पास आपके लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। And she dragged her leg to the gospel house. और वो पैर ऐसे घिसते हुए गॉस्पेल हाउस में गई And the leader of the house for that meeting that day said, "Why have you come so early?" और उस हाउस के जो मीटिंग के जो लीडर थे उस दिन के लिए, उन्होंने कहा आप इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आई हैं? She said, "I have come to get healed." उसने कहा मैं चंगाई पाने के लिए आई हूँ। Jesus asked me to come here to get healed. यीशु ने चंगाई पाने के लिए मुझे यहाँ आने के लिए He had कहा a hearty laugh. और वो बहुत ही जोर से हंसने लग गया। He also had to repent. उसे भी पश्चाताप करना पड़ा। Many times we preachers have to repent first. कई बार हम प्रचारकों को पहले पश्चाताप करना पड़ता है। Yes. हाँ। The faith of the people are so much. लोगों का विश्वास तो इतना ज्यादा है। We have to repent to walk in their faith for us to see miracles. हमें पश्चाताप करना पड़ता है ताकि हम उनके विश्वास में चले और चमत्कारों को देखते जाएं। Yes. हाँ, He repented. उसने पश्चाताप किया And the miracle happened. और फिर चमत्कार हुआ। God's healing came upon her. परमेश्वर की चंगाई उस पर आई She jumped and walked. और वो कूद कर चलने The लगी rest was history. और बाकी सब तो इतिहास And the है। Lord told her, प्रभु ने उससे कहा, "My daughter, मेरी बेटी, I could have healed you in your home, in your bed, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हें चंगाई दे सकता था, but I wanted to take you and make you stand before the unbelievers who never believe in me." लेकिन मैं तुम्हें अविश्वासियों के सामने खड़े रखना चाहता था जिन्होंने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया है। That's why I sent you to the gospel house. इसलिए मैंने तुम्हें गॉस्पेल हाउस में भेजा। Today, thousands have believed through your miracle. आज तुम्हारे इस चमत्कार के द्वारा हजारों लोगों ने विश्वास किया है। Are you ready to repent before God? क्या आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने को And तैयार say, हैं? "I'm going to trust you totally for you to do everything for me in 25, Lord Jesus." कहिए प्रभु 2025 में आप ही मेरे लिए सब कुछ करेंगे, इस बात के लिए मैं आप पर भरोसा रखता I हूँ। will never complain. मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। I will still say Jesus is a good God. मैं फिर भी कहूंगा कि यीशु तो भले परमेश्वर है। Then the rain of blessing will come और तब आशीष की बारिश होगी as you are drenched with the rain of God's righteousness. जैसे कि आप परमेश्वर की धार्मिकता की बारिश से भीग जाएंगे। The second is rain of knowing Jesus. दूसरा है यीशु को जानने की बारिश। Hosea 6:3 says, होशे 6:3 कहता है, "Let us pursue the knowledge of the Lord. He will come to us like the rain." आओ हम प्रभु के ज्ञान को ढूंढे, वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। इस तरह ये कहता है। Yes, हाँ, we should know Jesus. हमें यीशु को जानना होगा। As we know him personally, the rain of the Lord will come upon us. जैसे हम उसे व्यक्तिगत रूप में जानेंगे तो परमेश्वर की वो बारिश हम पर आएगी। Philippians 3:10 says, फिलिपियो 3:10 कहता है, "I must know him." मुझे उसे जानना है। This is Paul's prayer. ये पौलुस की प्रार्थना है। Why should we know him? हमें उसे क्यों जानना है? Only knowing Jesus can deliver us from the powers of the devil. केवल यीशु को जानने से ही हम शैतान की शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। Ephesians 6:11, इफिसियो 6:11, 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11। The devil came to test Jesus in Matthew 4. मत्ती 4 में शैतान यीशु की परीक्षा करने के लिए आया था। But Jesus knew the word of God, यीशु परमेश्वर के वचन जानते थे and he broke the trust on worldly provisions. और उसने संसार के प्रयोजन पर अपने भरोसे को तोड़ दिया। Through the word of God, Jesus broke the trust in fame and popularity. शोहरत और विख्यात होने पर भरोसा रखने को यीशु ने परमेश्वर के वचन से तोड़ दिया। Through the word of God, Jesus broke the trust in the worldly power and
authority. संसार की सामर्थ और अधिकार पर भरोसा रखने को यीशु ने परमेश्वर के वचन के द्वारा तोड़ दिया। Even today, और आज भी the Holy Spirit is coming upon you पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है to reveal Jesus to you. कि आप पर यीशु को प्रकट करें। When you have Jesus in you, जब आप में यीशु होते हैं you will overcome all the deceptions of the devil in the world and you'll be connected to Jesus. तो आप संसार के सारे शैतान के धोखे पर जयवंत होंगे और आप यीशु के साथ में जुड़ जाएंगे। Romans 8:26 to 28. रोमियो 8:26 से 28 तक As the Holy Spirit prays through you जैसे पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना with करता है groanings, कराहते हुए, He will make you confess Jesus as Lord according to 1 Corinthians 12:3. पहला कुरिन्थियों 12:3 के अनुसार वो आपको यीशु को प्रभु के रूप में अंगीकार करने लगाएगा And then all things will work unto good for और you फिर आपके लिए सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करेगा। according to Romans 8:28. रोमियो 8:28 के अनुसार Jesus said in Matthew 6:33, मत्ती 6:33 में यीशु ने कहा, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto पहले you. परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। We should know Jesus. हमें यीशु को जानना होगा। As we know him personally, the reign of the Lord will come upon us. जैसे हम उसे व्यक्तिगत रूप में जानेंगे तो परमेश्वर की वो बारिश हम पर आएगी, The reign of peace. शांति की बारिश। Isaiah 32:15 and 18. यशायाह 32:15 और 18। The Spirit is poured upon us from on high, हम पर ऊपर से ये आत्मा उंडेला गया है and the Lord will make us dwell in quiet resting place. और परमेश्वर हमें शांति के स्थानों में निश्चिंत रखेंगे। Yes, when God's reign of blessing comes, God will make us live in peace. जब परमेश्वर की आशीष की बारिश होती है तो परमेश्वर हमें शांति से रहने देते हैं। Job cried अयूब ने पुकारा in Job 3:26, अयूब 3:26 में, I have no peace, मेरे पास कोई शांति नहीं है, I have no quietness, कोई स्थिरता नहीं है, I have no rest, कोई विश्राम नहीं है, I have only turmoil. केवल विपत्ति ही मेरे पास है। Maybe you are crying like that. शायद आप इस तरह से पुकार रहे हैं, Maybe you are crying in your family like that. परिवार में शायद आप इस तरह से पुकार रहे हैं। Because Job lost his children, अयूब खो बैठा था अपने बच्चों his को, health, अपनी सेहत his possession, और संपत्ति को, family life. पारिवारिक जीवन When को। his wife said, Curse God and die, पत्नी ने कहा परमेश्वर को कोस और मर जा। he said, I have no उसने peace. कहा मेरे पास कोई शांति But नहीं, Jesus came लेकिन यीशु आए and he और says, उसने कहा My peace I give unto you, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, not as the world gives. जैसे संसार देता है वैसे I नहीं, will give you my peace, मैं तुम्हें अपनी शांति the दूंगा। rain of peace. शांति की बारिश। Shall we all raise our hands and say, Thank you, Lord. आइए हम अपने हाथ उठाएं और कहें धन्यवाद Thank you प्रभु। for the rain of peace. शांति की बारिश के लिए धन्यवाद। God is sending the rain of peace upon you, your family, your ministry, and the nation. परमेश्वर शांति की बारिश आप पर, आपके परिवार पर, आपकी सेवकाई पर और आपके देश पर उंडेल रहे हैं। Isaiah 52:7. यशायाह 52:7। Your ministry will be full of peace. आपकी सेवकाई शांति से भरी होगी। Psalm 147:14. भजन संहिता 147:14। Your family will be in peace. आपका परिवार शांति में होगा। Proverbs 16:7. नीति वचन 16:7। Your enemies will be at peace with you. आपके शत्रु आपके साथ शांति में रहेंगे। Isaiah 54:13. यशायाह 54:13। Your children will be at peace. आपके बच्चे शांति में रहेंगे। Great shall be the peace of your children. आपकी संतानों की शांति बहुत होगी। 1 Samuel 13:19. पहला शमूएल 13:19। Everything you have lost will come back to you. आपने जो भी खोया वो सब आपको वापस मिलेगा। Nothing will be lacking. कोई घटी नहीं होगी। You'll have financial blessing. आप आर्थिक आशीष पाएंगे। This is God's promise through the abundance of rain that is coming. जो बहुतायत की बारिश आ रही है ये तो आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। And fourthly, और चौथी बात, the rain to destroy the demonic powers. दुष्ट आत्माओं की ताकतों को नाश करने के लिए आशीष की वर्षा। Isaiah 28 and verse 2. यशायाह 28 वचन 2। The Lord sends a mighty hail and flood to destroy the powers of darkness. परमेश्वर बड़े ओलों की बारिश
और बाढ़ भेजेंगे ताकि अंधकार के काम नाश हो। This year you will see the powers of darkness being bound by the power of the Holy Spirit through the blessing rain. आप पाएंगे कि आशीष की वर्षा के द्वारा अंधकार की जो ताकतें हैं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बांध दी जाएगी, उन्हें बांध दिया जाएगा। If you believe it, would you shout a big अगर आप hallelujah? इस पर विश्वास करते हैं तो जोर से कहें हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Isaiah 59:19. यशायाह 59:19 When the enemy comes in like a flood, जब शत्रु बाढ़ के समान आएगा the Spirit of the Lord will lift up a banner against him, तो परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा, standard against him. झंडा खड़ा करेगा। Today that grace is coming. आज ये अनुग्रह आ रहा है। 2 Corinthians 3:17. दूसरा कुरिन्थियों 3:17 Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। This year, इस साल according to Revelation 12:10 and 11, प्रकाशित वाक्य 12, 10 और 11 के the अनुसार accuser, जो दोष लगाने वाला the है, false accuser of the brethren, जिससे भाइयों पर दोष लगाने वाला कहते हैं, who has accused us against God, जिसने परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाया है, accused us against the society, समाज के विरुद्ध में हम पर दोष लगाया है, shall be cast down by the power of the rain of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की बारिश के द्वारा वो तो नीचे गिरा दिया जाएगा। Amen. Amen. You shall overcome by the blood of the Lamb and the word of his testimony. आप मेमने के लहू के द्वारा और उसके गवाही के वचन के द्वारा जयवंत हो जाएंगे। One day I was praying for the people. एक दिन मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था Thousands had lined up. और हजारों लोग लाइन में लगे हुए थे। A mother brought a daughter एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई and she said, और कहा she is very sick. ये तो बहुत बीमार है। But when I laid hands on the daughter, और जब मैंने बेटी पर अपना हाथ the रखा mother began to shriek तो माँ वहां पर कांपने लग गई and the demon inside her began to shout. और उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो चिल्लाने लग The गई। mother was saying that the daughter is demon possessed. माँ कह रही थी कि मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। But when I laid hands on the daughter जब मैंने बेटी पर अपना हाथ रखा and I said, Lord, thank you for shedding your blood for her. मैंने कहा प्रभु आपने इसके लिए लहू बहाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you for purchasing her with your blood. इसे अपने लहू के द्वारा आपने खरीदा, इसलिए धन्यवाद। When I quoted the blood of Jesus, जब मैंने यीशु का लहू कहा the devil inside the mother began to shriek. तो माँ के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो कांपने लग गई And the devil और said, दुष्ट आत्मा ने कहा don't burn me. मुझे मत जलाओ, It's burning. जल रही हूँ, It's burning. जल रही हूँ। And she fell down. और फिर वो नीचे गिर गई And the daughter also began to speak. और बेटी भी बोलने लगी। 100% healed. पूरी 100% चंगाई पाई। You will see the demon powers leaving you this year. आप पाएंगे कि इस साल दुष्ट आत्मा की ये जो सामर्थ है वो आपको छोड़कर जा रही है। As the power of the Holy Spirit comes upon you. जैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर आती है, The Spirit rain is coming. आत्मा की बारिश आ रही है And the demon shall flee. और दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। Have the demons bound your business? क्या दुष्ट आत्माओं ने आपके व्यापार को बांध रखा है? Bound your family life? आपके पारिवारिक जीवन को बांधा है? Bound your relationships? आपके संबंधों को बांधा Bound है? your finances? आपके धन को बांध रखा है? Bound your walk with God? परमेश्वर के साथ चलने को बांध Bound रखा your है? ministry? आपकी सेवकाई को बांध रखा है? Now the blessing rain is coming. अब आशीष की बारिश आ रही The है, power of the Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही And है the accuser shall fall. और दोष लगाने वाला गिर And जाएगा everywhere और हर जगह पर God's people will have a great reputation, परमेश्वर के लोग बड़े सम्मान को पाएंगे, great power. बड़ी सामर्थ। The demons will shriek, दुष्ट आत्माएं कांपेंगी leave the people, और लोगों को छोड़ेगी, leave your obstruction, आपकी रुकावटों को छोड़ देंगी, leave your family. आपके परिवार को छोड़ देंगी। Now that grace is coming upon अब you. ये अनुग्रह आप पर आ रहा है। And fifthly, और पांचवी बात, the rain of prophecy and prosperity. भविष्यवाणी और संपन्नता की बारिश। James 5:14, 17 and 18. याकूब 5:14, 17 और 18 कहता है, Elijah was a man with a nature like ours. एलिया तो हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। He prayed, उसने प्रार्थना की and the heavens gave rain and earth produced its तो fruit. आकाश से मेह बरसा और भूमि से उपज उपजी। 1 Kings 18:41 and 42. पहला राजा 18:41 और 42। Elijah said prophetically, एलिया ने भविष्यवाणी के रूप में कहा, Ahab, आहा, the rain is coming. बारिश आने वाली है। And it came. वो आई And God gave him the prophetic और word परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी का वचन दिया to remove the wicked Jezebel from her power. कि दुष्ट यहजबेल को उसकी सामर्थ से वो दूर कर दे। The Jezebel who destroyed
destroyed God's prophets and God's priests was removed through the prophetic anointing that came upon Elijah. एलिया के ऊपर जो भविष्यवाणी का अभिषेक आया उसके द्वारा यहजबेल को नाश कर दिया गया। उस यहजबेल ने परमेश्वर के बहुत से भविष्यवक्ताओं की हत्या की थी, उसे हटा दिया गया। God said, prophesy, Elijah, about the next king, Jehu. परमेश्वर ने एलिया से कहा, अगले राजा येहू के बारे में एलिया तू भविष्यवाणी कर। And Jehu became king. और फिर येहू राजा बन गया। Jezebel was eaten by the dogs and और died. यहजबेल को तो कुत्तों ने खा लिया और वो मर गई। That's the power of prophecy. ये भविष्यवाणी की सामर्थ है। Today God is sending that rain of prophecy upon all of us हम सब के ऊपर आज परमेश्वर भविष्यवाणी की ये बारिश भेज रहे to हैं fulfill God's purpose in the nation and in our कि families. देश में और हमारे परिवार में हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। Right now the Lord says अभी इस समय परमेश्वर कहते in हैं Joel 2:28, योएल 2:28 में, I will pour my spirit upon all flesh, मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा and your sons and daughters will prophesy. और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। Rain of prosperity. संपन्नता की बारिश। Zechariah 10 and verse 1. जकरिया 10:1, Ask the Lord for rain in the time of the latter rain. बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, ये कहता है, He will give them showers of rain. और वो अपनी वर्षा देगा। इस तरह से ये वचन कहता है, Grass in the field of everyone. और हरेक के खेत में हरियाली उग When जाएगा। God's rain comes through the Holy Spirit, everything that you have will prosper. जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बारिश होती है तो आपके पास जो कुछ भी है वो सब संपन्न होते जाएगा। Joel 2:23. योएल 2:23, As God causes the rain to come down, जैसे परमेश्वर बारिश भेजते हैं whatever you have lost, God will give it back to you. तो आपने जो कुछ भी खोया है परमेश्वर वो सब आपको लौटाएंगे। Psalm 68 and verse 9. भजन संहिता 68 वचन 9, When God sends the plentiful rain, जब परमेश्वर बहुत आज से बारिश भेजते हैं God will refresh you and comfort you. परमेश्वर आपको तरोताजा करेंगे, आपको तसल्ली देंगे। Acts 14 and 17. प्रेरितों के काम 14:17, When Holy Spirit rain comes upon you, जब पवित्र आत्मा की बारिश आपके ऊपर होती है God will give you food and gladness. तो परमेश्वर आपको भोजन और आनंद देंगे। He will give you food and gladness through the rain of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा की बारिश के द्वारा आपको भोजन देंगे और आपको आनंद देंगे। Philippians 4:19. फिलिपियो 4:19, God shall supply all your need. परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत पूरी करेंगे। Malachi 3 and verse 10. मलाकी 3:10, When you bring your offerings to God's ministry, जब आप अपनी भेंटों को प्रभु की सेवकाई में लेकर आते हैं God will open the windows of heaven, storehouse of heaven, and pour down a blessing which you cannot hold. परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोलकर आप पर इतनी आशीषें उंडेलेंगे कि उन्हें रखने के लिए आपके पास में जगह काफी नहीं होगी। Now the Spirit rain is going to come upon you, अब आत्मा की ये बारिश आपके ऊपर आएगी and the rain for prosperity is coming. और संपन्नता की जो बारिश है वो आ रही है। The Lord says, my spiritual rain of blessing shall surely be experienced by all who call on my name. हर एक व्यक्ति जो मेरे नाम को पुकारता है उसके ऊपर मेरी आत्मिक बारिश का वो अनुभव कर पाएंगे, निश्चय वो इसे जानेंगे। 2025, 2025 the year of spiritual blessing rain. ये तो आत्मिक आशीष की बारिश का वर्ष है। Lord, we welcome this year, प्रभु हम इस साल का स्वागत करते हैं and we welcome the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। Even as we sing the song, the promise for 2025, और जैसे हम 2025 की प्रतिज्ञा के इस गीत को गाते हैं, I pray that this blessing shall come upon everybody. मेरी प्रार्थना है कि यह आशीष हर एक व्यक्ति पर आ जाए। आशीषों की बारिश का अब समय यही है, होगी बड़ी बारिश जब आत्मा मंडराए। आशीषों की बारिश का अब समय यही है, होगी बड़ी बारिश जब आत्मा मंडराए। स्वर्ग से तुझ पर आत्मा उंडेलेगा, मुरझाए हुए को यीशु फिर से जलाएगा। स्वर्ग से तुझ पर आत्मा उंडेलेगा, मुरझाए हुए को यीशु फिर से जलाएगा। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए, यही समय है चिंता
यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। Today I want to pray with you आज मैं आपके साथ प्रार्थना करना to चाहता हूँ pronounce this blessing for your future. कि आपके भविष्य के लिए इन आशीषों की घोषणा The करूं। Holy Spirit is coming upon you right now to perfect everything in your life. आपके जीवन में सारी बातों को सिद्ध करने के लिए अभी इसी समय पवित्र आत्मा आ रहा To है perfect everything in your family. कि आपके परिवार में सारी बातों को सिद्ध To करें, perfect everything in your mind, आपके मन में हर एक बातों को सिद्ध in करें, your soul, आपके प्राण in में, your life, आपके जीवन in your में, relationship. आपके संबंधों में। Shall we pray together right now, believing this miracle for you? आइए इस चमत्कार के लिए विश्वास करते हुए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Oh Lord Jesus, ओ प्रभु यीशु मसीह, remember your children. अपनी संतानों को स्मरण कीजिए, Remember your children. अपनी संतानों को स्मरण कीजिए। Every time you remembered your children in the Bible, बाइबल में हर समय जब आपने अपनी संतानों को स्मरण किया there was a miracle. तब वहाँ चमत्कार हुआ। Let it happen for thy son, thy daughter, who is praying with me right now. अभी मेरे साथ प्रार्थना करने वाले आपके बेटे और आपकी बेटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने पाए। I pray for everyone who is to be married, Lord. जिन लोगों की शादी होनी है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Let their waiting end right now in Jesus' name. इनका इंतजार अभी इसी समय यीशु के नाम में खत्म हो जाए। Bring the boy, bring the girl whom you have chosen for them, who has been created for them by you, into their life right now. प्रभु इनके जीवन में जो लड़का या जो लड़की आपने इनके लिए बनाई है, सृष्टि की है, उन्हें अभी इनके जीवन में आप लेकर आइए मेरे प्रभु। Today let the miracle happen. आज ही ये चमत्कार होने पाए In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Quicken the heart of that boy or a girl or their family and bring them to thy son, thy daughter. उस लड़के, उस लड़की या उसके परिवार के हृदय को आप प्रोत्साहित कीजिए और अपने बेटे और बेटी के पास में उन्हें लेकर आइए। Let this your dear child be married in Jesus' name quickly. और प्रभु आपकी ये प्यारी संतान जिसकी शादी होनी बाकी है, जल्दी से इनकी शादी हो जाए। And those who are married, और जो लोग शादीशुदा हैं, give them peace in their family relationships. इनके वैवाहिक संबंधों में आप इन्हें शांति दीजिए। If there is a problem because of the financial troubles, यदि आर्थिक परेशानी के कारण किसी तरह की कोई समस्या है, if there is a problem because they don't have a child, अगर इन्हें संतान नहीं है, इस तरह की अगर कोई समस्या है, if there is a problem because of mental disagreements मानसिक रीति से असहमति के कारण यदि कोई समस्या है, or family disturbances, या फिर परिवार में उथल पुथल है, whatever may be the reason, चाहे इसका कारण जो कुछ भी हो, I bind the problem which is in their relationships. इनके संबंधों में जो भी समस्या, उस समस्या को मैं अभी इस समय बांध देता हूँ। Bless their family relationship. प्रभु आप इनके पारिवारिक संबंधों को आशीष दीजिए, Heal their hearts इनके हृदयों को चंगाई and दीजिए unite them together. और इन्हें एक साथ में जोड़ दीजिए। I remove every outside influence from their family life. इनके पारिवारिक जीवन के ऊपर जो भी बाहर से प्रभाव आता है उसे मैं दूर कर देता हूँ। Give them grace to reject the outside influences. इन पर अनुग्रह कीजिए कि ये बाहर के प्रभाव का इनकार करने पाए Let them cling on to each other. और प्रभु ये एक दूसरे को थामे रहें। Blend their hearts, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इनके हृदयों को जोड़ दीजिए। Today I pray for finances, आज मैं धन के लिए प्रार्थना करता हूँ, blessings in the job, नौकरी में आशीष के लिए, establishment in the job, नौकरी में इन्हें अच्छे से स्थापित करने के लिए, and let there be blessing in their finances. और इनके धन में आशीष आने पाए प्रभु, Let them be together. और ये एक साथ रहने पाए। Father, if they do not have a child, पिता अगर इनकी कोई संतान नहीं है let your daughter conceive right now in Jesus' name. तो आपकी बेटी यीशु के नाम में अभी इस समय गर्भ को धारण कर ले Let their bodies be healed. और इनके शरीर चंगाई प्राप्त कर ले Let them have a child. और ये संतान प्राप्त करे। And if the demonic spirits are oppressing their relationship, अगर कोई दुष्ट आत्माओं की ताकतें इनके संबंधों में परेशानी लेकर आती हैं, let those demons leave right now in Jesus' name. अभी इसी समय वो दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में चली जाए। Your devils don't touch them. दुष्ट आत्माएं इन्हें छूने न पाए, Don't separate them. इन्हें अलग नहीं करें। We cast you out in Jesus' name. यीशु के नाम में हम इन्हें निकाल देते हैं। Give them a beautiful house, आप इन्हें सुंदर घर दीजिए, beautiful job, सुंदर नौकरी दीजिए, beautiful relation. बहुत ही सुंदर संबंध And दीजिए। those who do not have children, let them have a child immediately, Lord.
जिनकी कोई संतान नहीं है प्रभु, अभी इन्हें आप संतान प्रदान Let the कीजिए। back pain be healed. पीठ का दर्द चंगा हो जाए। Everyone who is waiting for a healing be healed right now in Jesus' name. हर एक व्यक्ति जो चंगाई का इंतजार कर रहा है, अभी इसी समय वो चंगाई प्राप्त करने वाला हो। Heal must. स्वामी चंगाई Let दीजिए every pain go in Jesus' name. और हर एक दर्द चले जाए यीशु के नाम में। Every sickness come out in Jesus' name. हर एक बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। Every disease be healed in Jesus' name. हर एक बीमारी यीशु के नाम में चंगी हो जाए Let them live in Jesus' name. और ये यीशु के नाम में जीवित रहें। Those who need strength to accomplish things in the job, give them wisdom and great success. जिन्हें बल चाहिए ताकि अपने काम में वो अच्छी उपलब्धियां हासिल करें, आप इन्हें बुद्धि और महान सफलता Give दीजिए। them promotion, इन्हें आप प्रमोशन दीजिए। favor in the eyes of those with whom they work. जिनके साथ में ये काम करते हैं उनकी दृष्टि में इन पर कृपा कीजिए Give them success as a team. और एक टीम के रूप में आप इन्हें सफल कीजिए Let them have peace in their working place. ताकि ये अपने काम की जगह पर शांति पाएं। And every witchcraft power I remove from their families, और हर एक जादू टोने की ताकतों को मैं इनके परिवार से दूर कर देता हूँ, from their business. इनके व्यापार से। Whatever money has to come to them, let it come in search of them in Jesus' name. हर एक पैसा जो इनके पास में आना चाहिए वो पैसा इन्हें ढूंढते हुए यीशु के नाम में आ Let the जाए। payments come to them in Jesus' name. जो पेमेंट्स है यीशु के नाम में इनके पास आ Let the जाए properties come to them in Jesus' name. और जो संपत्ति है वो यीशु के नाम में इनके पास आ Let जाए। it come today in the name of Jesus. आज ही ये यीशु के नाम में इनके पास आ जाए। And Father, और पिता, whoever is suffering because of false allegations, झूठे आरोप के कारण जो कोई भी दुख उठा रहा है, false cases, झूठे केस के कारण, wicked people speaking jealous things which are false, और दुष्ट लोग जलन की बातें कहते जो कि पूरी तरह से झूठी I है, break those opposition मैं उन सारे विरोधों को तोड़ देता हूँ and I cast it out. और उसे निकाल देता हूँ। Give them justice in the court. प्रभु आप इन्हें कोर्ट में न्याय दीजिए Give them justice from the department. और डिपार्टमेंट की ओर से आप इन्हें न्याय दीजिए। Give them justice in their working place. इनके काम की जगह पर आप इन्हें न्याय दीजिए। Give them justice in their studying places, especially those who are doing PhD. पढ़ाई के स्थान में आप इन्हें न्याय दीजिए, खास करके जो लोग पीएचडी कर रहे हैं। If somebody is falsely accused अगर किसी ने इनके ऊपर किसी तरह से झूठा आरोप लगाया and is in jail, और ये अभी जेल में हैं, bring them out, Lord. आप इन्हें बाहर निकालिए Do प्रभु। justice. आप इनके लिए न्याय कीजिए And those who have been wrongfully treated in their jobs, let them get back the job in Jesus' name. और जिनके साथ नौकरी में बुरा व्यवहार किया गया है, यीशु के नाम में इन्हें इनकी नौकरी वापस मिलने पाए। Let them get back the promotion. ये प्रमोशन वापस प्राप्त करें Let them get back the finances and the awards. और जो कुछ भी धन और जो कुछ भी अवार्ड इन्हें मिलना चाहिए इन्हें वापस मिले। Honor them, Lord. इनका आदर कीजिए प्रभु। Every separated husband and wife come together back again in Jesus' name. हर एक पति और पत्नी जो अलग हो चुके हैं, यीशु के नाम में वो फिर से एक साथ वापस आ जाए। Lord, let their hearts be healed. Let them be knit to each other. प्रभु इनका हृदय चंगाई पाए और ये पूरे एक दूसरे के साथ में बुन जाएं। Give them great success. आप इन्हें महान सफलता दीजिए। Those who are working for research, जो लोग रिसर्च पर काम कर रहे हैं developing a product, या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, and waiting for a project, प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, waiting for an investment, निवेश के लिए इंतजार कर रहे let हैं, everything come to them today in Jesus' name. ये सब कुछ इनके पास आ जाए यीशु के नाम में। Thank you for this blessing, Lord. इस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus, for giving much more than what we have asked. प्रभु हमने जो कुछ भी मांगा उससे बहुत बढ़कर दिया, इसलिए धन्यवाद। Give very high marks to the children बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स दीजिए and give them great success in the coming exams. और आने वाली एग्जाम में आप इन्हें महान सफलता दीजिए Give them admission in the best courses. और सबसे अच्छे कोर्स में आप इन्हें एडमिशन दीजिए। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We love you हम आपसे प्रेम करते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you प्रभु आपको आशीष दे richly बहुत आयत से and abundantly. और भरपूरी से।